अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उम्दा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज़्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है, लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संगीत फिल्म देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज ए 2018 Indian action comedy film starring Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor and Anil Kapoor is the lead role of, produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra of Yash Raj Films. It was the releases on 25 April 2008 and market and direction about the Vijay Krishna Acharya. Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal AK and Jimmy Chip Saif Ali Khan is called center in the access to who is also teach English. Pooja Singh Kareena Kapoor slope of the outside is the class and says and need private tutoring without any hastening, and Jimmy quickly agree has the already felt in love with her. The later finds out the Pooja and boss Lakhan with the blaze aka Bhaiyaji Anil Kapoor is the one who is the husband to their love grows, and Pooja rebels that only working for the Bhaiyaji to play her adoption, so she can then to the Haridwar and sister to the chest. They decide to the steal Bhaiyaji money and run away. The couple success in mission and Jimmy asks Pooja to grant the money while he goes to the call center to tell me the living. At the call center, Jimmy has learned the Bhaiyaji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money, and she meets bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagrees, and Pooja puts her hands and inside his pocket and agree. Bhaiyaji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy. After getting caught, Jimmy and Bachchan lead awards Haridwar to find Pooja and recover Bhaiyaji money. When they reach there, Pooja sees them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station, and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja comes up the water to see has been the hiding their trunk, and whole time she tells them that she has the hidden the money in the 7 different and the place across Indian. Jimmy and Pooja decide to run away with the money. The dude decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are each other and children loves, and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decide to live with it, not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. On the play, the negative role in the film, this film is the continue Khan's long and standing successful celebration with Yash Raj Films. It also market the return for 3 of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer, the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with the Kareena and Anil Kapoor, where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Limhe respectively. Apart from the major star Khan's and Khan's son
Abraham also made the acting debut, and where is the played the younger version of this father and character, and Suka later enters all the actors put the supporting new look and designed by the designer A.K. Durilla. Now I talk about the reception of this film. I talk about box office. Before the release of this film, Tesson repeated the advance booking with the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sole work weekend is the major centered on the day of the release. The film was happened to 75 to 80% response but fell short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem which they did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 100 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Raj Films and Multiplex which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. दोस्तों अगर आप हमारा पागल दीवाना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो भाई ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इसे यूट्यूब पर अपलोड भी करता तो इसे हटवा देते हैं, क्योंकि वे इस मूवी से अब भी वे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई ये फ्यूचर में कब अपलोड करते हैं भाई वो तो वही जानते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम करते हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। इसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में 200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए, या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गृह अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब शिवदासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अंद्रा यानी सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जॉनी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसे अधिक पैसे की पेशकश थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं।
विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। हेड़ा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एडा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और उन्हें गुरु से प्राप्त हुए थे। प्रीति टिप्पणी करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु इतने अच्छे थे। तो चलिए इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किस अभिनेता ने काहे का रोल निभाया। तो इसमें परेश रावल ने मणिलाल पटेल का रोल निभाया है, सुनील शेट्टी ने एड़ा अन्ना का रोल निभाया है और अक्षय कुमार ने गुरु गुलाब खत्री का रोल निभाया है। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक है। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका यज्ञनिक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो खाई कसम, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। पांचवा गाना था मोरे सांवरिया, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। छठा गाना था या हबीबी, जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था ये तूने क्या किया, और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रही थी। इस फिल्म का अगला भाग बनाने की योजना बनाई जा रही थी। फिरोज ने अक्षय कुमार को इसके लिए राजी कर लिया है। गैरतलब यह है कि अक्षय और फिरोज में पिछले दिनों अनबन हो गई थी, जिसके कारण अक्षय ने वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अभिनय नहीं किया। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल को अहमद खान ने निर्देशित करने वाले हैं। इसमें अक्षय के साथ विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। टी सीरीज भी फिल्म के निर्माण से जुड़ सकती है। साथ ही अक्षय इस फिल्म में काम करने बदले एक मुश्त फीस लेंगे। वे एयरलिफ्ट की तरह मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। आवारा पागल दीवाना is a 2002 Indian Hindi language action comedy film directed by Vikram Bhatt. The film's music was composed by Anu Malik and the lyrics by Sameer. It has the plot loosely inspired by the whole 9 years and features action scene and choreographed by the Susan director Dio Lam, who worked on the Matrix and the Hong Kong action films. It was the notable for Sylvester the exotic song Picturation Status action seen by the Akshay Kumar and Pरेश रावल, popular comedian chemistry with Johnny Lever, who played a funny character called Chhota Chhatri. Directed by Vikram Bhatt, produced by Firoz Nadiadwala, written by Neeraj Arora. Music by Anu Malik, cinematography by Pravid Bhatt, and release date 21 June 2002, running time 164
4-minute country India language Hindi. Now I talk about the plot of this film. The story is central of the legacy of the elder Indian underworld Don Baba Baldev Press Ompri, who died to a heart attack. He leaves diamond worth 200 mm at a New York bank to be the distributed equal between his son Vikrant Rahul Dev, his daughter Preeti Jagnani, and Preeti husband Guru Gulab Khatri, Akshay Kumar to claim the diamonds. All three benefactors must to the present at the bank or it dead their death. Shortly after Dawn death, Vikram attempted to the inmate group by the assassinating in the Indian home minister in full view of television camera. Would the discuss as him group flashed to the us dialogues and someone is to space protection. Now I talk about the cast of this film. Press Rawal as the Malayali Patel and Sunil Shetty ji Eda Anna. Now I talk about the soundtrack. The music of the album has been composed by Anumalik. All lyrics are written by Samir. First song Awara Pagal Dimana, singing by San Sunidhi Chauhan. Length of the song 4 minutes. Second song Jise Hasna Rona, singing by Udit Narayar, Sonu Nigam, San Alka Yalkina, Sunidhi Chauhan, Sarika Kapoor, and length of this song 7 minutes 30 seconds. The third song Love Theme, its length is the 1 minute 10 seconds. Fourth song Maine To Khai Kasam, singing by Sunidhi Chauhan Abhijit. Length of this song 5 minutes 2 seconds. The fifth song More Sanvaria, singing by Sunidhi Chauhan, San Anu Malik, length of the song 6 minutes 36 seconds. The sixth song Ya Habi, singing by Adnan Semi, Sudhir Kumar, Sunidhi Chauhan, length of the song 7 minutes 19 seconds. The seventh song Ye Tune Kya Kiya, not used in the film, singing by Sonu Nigam and Anuradha Paudlal. The length of the song 7 minutes 10 seconds. Now I talk about awards. Year 2003 give the Press Rawal Award. Award named the film for the best performance in the comic role and G-San Award for best actor in comic role. Both awards nominated to the Press Rawal in 2003. In the 2004, Johnny Lever nominated the award, Screen Award for the best comedian, won this for this film. With Vikrant Dutt, Preeti and Guru each get half the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrested them and take them on unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by the Chinese goons. Vikrant gets the diamonds and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. When it is all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Amol has them and saying he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Amol and gets the diamond, while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double cross Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins a fight and Yeda gives the diamonds to Guru while hugging him to a war and helping him stand on Chota Chhatri shoulders. In the end, Anmol and his love Preeti are seen going to India. Amol, ex-father-in-law, give him some diamonds. दोस्तों, आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन
फिल्मों में काम करते हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। इसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों, ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में 200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए, या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गुरु अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब, शिव, दासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। उसके पास सुप्रिया फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अंद्रा यानी सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जॉनी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। येडा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और येडा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और खतरी का रोल निभाया। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक के। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था। और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका याग्निक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो खाई कसम, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। पांचवा गाना था मोरे सांवरिया, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। छठा गाना था या हबीबी, जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर 7वां गाना था ये तूने क्या किया, और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट
परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रही थी। इस फिल्म का अगला भाग बनाने की योजना बनाई जा रही थी। फिरोज ने अक्षय कुमार को इसके लिए राजी कर लिया है। गौरतलब यह है कि अक्षय और फिरोज में पिछले दिनों अनबन हो गई थी, जिसके कारण अक्षय ने वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अभिनय नहीं किया। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल को अहमद खान ने निर्देशित करने वाले हैं। इसमें अक्षय के साथ विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। टी सीरीज भी फिल्म के निर्माण से जुड़ सकती है। साथ ही अक्षय इस फिल्म में काम करने बदले एक मुश्त फीस लेंगे। वे आवारा पागल दीवाना is a 2002 Indian Hindi language action comedy film directed by Vikram Bhatt. The film's music was composed by Anu Malik and the lyrics by Sameer. It has the plot closely inspired by the whole 9 years and features action scene and choreographed by the Susan director Dio Lam, who worked on the Matrix and the Hong Kong action films. It was the notable for Sylvester the Exotic song Picturation Status action seen by the Akshay Kumar and Paresh Rawal, popular comedian chemistry with Johnny Lever, who played a funny character called Chhota Chhatri. Directed by Vikram Bhatt, produced by Firoz Nadiadwala, written by Neeraj Arora. Music by Anu Malik, cinematography by Pravid Bhatt, and release date 21 June 2002, running time 164 minutes, country India, language Hindi. Now I talk about the plot of this film. The story is central of the legacy of the elder Indian underworld on Papa Baldev Press Ompri, who died with a heart attack. He leaves diamond worth 200 mm at a New York bank to be the distributed equal between his son Vikrant Rahul Dev, his daughter Preeti Jagnani, and Preeti husband Guru Gulab Khatri. Akshay Kumar to claim the diamonds. All three benefactors must to the present at the bank or it dead their death. Shortly after dawn death, Vikram attempted the inmate group by the assassinating in the Indian home. Minister in full view of television camera would the discuss as him group flash to the us dialogues and someone is to space protection. Now I talk about the cast of this film. Paresh Rawal as the Malayali Patel and Sunil Shetty ji Eda Anna. Now I talk about the soundtrack. The music of the album has been composed by Anu Malik. All lyrics are written by Sameer. First song Avara Pagal Deewana, singing by San Sunidhi Chauhan. Length of the song 4 minutes. Second song Jise Hasna Rona, singing by Udit Narayan, Sonu Nigam, San Alka Yalkina, Sunidhi Chauhan, Sarika Kapoor, and length of this song 7 minutes 30 seconds. The third song Love Theme, its length is the 1 minute 10 seconds. Fourth song Maine To Khai Kasam, singing by Sunidhi Chauhan Abhijit. Length of this song 5 minutes 2 seconds. The fifth song More Sanvaria, singing by Sunidhi Chauhan, San Anu Malik, length of the song 6 minutes 36 seconds. The sixth song Ya Habi, singing by Adnan Semi, Sudhir Kumar, Sunidhi Chauhan, length of the song 7 minutes 19 seconds. The seventh song Ye Tune Kya Kiya, not used in the film, singing by Sonu Nigam and Anuradha Paudlal. The length of the song. दोस्तों ये दिल्ली की 1994 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्माण उदय चोपड़ा द्वारा किया गया है और निर्देशन नरेश मल्होत्रा का है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार, काजोल और सैफ अली खान हैं। यह इकलौती फिल्म है जिसमें काजोल और अक्षय ने एक साथ अभिनय किया था। इसे सैफ अली खान की पहली सफल फिल्म भी माना जाता है। इसमें म्यूजिक दिया था दिलीप सेन। समीर सेन ने 154 मिनट की फिल्म है। 6 मई 1994 को रिलीज हुई थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। अगर बात करें कहानी की तो साइकिल परिवार के ड्राइवर की पुत्री सपना यानी काजोल साधारण सादगी भरी खुशनुमा लड़की है, लेकिन उसके सपने उतने ही सरल नहीं हैं। वह साइकिल परिवार की समृद्ध और आरामदायक जीवन शैली को देखकर खुद समृद्ध होने का सपना देखती है।
विजय सहगल यानी अक्षय कुमार और विकी सहगल यानी सैफ अली खान सहगल इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी हैं। विजय जो व्यवहार से अंतर्मुखी है, पूरे सहगल परिवार के व्यवसाय को चलाता है, जबकि विकी एक गैर जिम्मेदार लड़कीबाज और एक सख्त इश्कबाज है। एक घटना उसके बीच घर्षण का कारण बनती है जब विकी सपना को चोट पहुंचाता है और उसे उसकी हैसियत की याद दिलाता है। सपना अपने छोटे शहर को छोड़कर बॉम्बे जाती है। सपनों के शहर में उसकी किस्मत उसका साथ देती है और सफलता उसे गले लगाती है। प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वह देश की सबसे बड़े मॉडल बन जाती है। यही वह समय है जब वह विकी के सपनों की लड़की बन जाती है। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने शहर वापस जाती है। बड़ा भाई विजय सपना की सादगी से आकर्षित हो जाता है और खुद को उसके प्यार में पाता है। दूसरी तरफ विकी सपना की मोहकात से उसे पसंद करने लगता है और अपने इश्कबाज स्वभाव के विपरीत खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल लेता है जो सच्चे प्यार के अर्थ को समझता है। इन तीन व्यक्तियों के बीच इस जटिल परिस्थिति में कहानी कैसे विकसित होती है, इस चीज़ पर फिल्म का निर्माण होता है। एक भाई प्यार के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा अपने भाई के जीवन के लिए अपने प्यार को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें अक्षय कुमार विजय सहगल के रूम में है, काजोल देवगन सपना के रूम में है, सैफ अली खान विक्रम विकी सहगल के रूम में है। अगर बात करें इस मूवी के गानों की, तो इस मूवी के गानों के संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और इसके गीतकार हैं समीर। इसमें पहला सॉन्ग था देखो जरा देखो, जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। दूसरा सॉन्ग था गोरी कलाई, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। तीसरा सॉन्ग था होठों पे बस, जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था लगी लगी ये दिल की लगी, जिसे गाया था लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिजीत ने। पांचवा सॉन्ग था मैं दीवाना हूँ, जिसे गाया था पंकज उदास। छठा सॉन्ग था नाम क्या है, जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। सातवां सॉन्ग था ओले ओले, जिसे गाया था अभिजीत ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की, तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिलीप सेन समीर को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अभिजीत ओले ओले के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को दिया गया था। दोस्तों, मूवी और बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं टसन मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम स्टोरी शुरू करें, इससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा नॉलेज। दोस्तों, इस मूवी के निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, इसके निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर में, इसमें कलाकार थे अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर। इसकी रेटिंग थी 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का। बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का। बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है, लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमैक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था, जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था, लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ़ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय, जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है, जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों, कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं।
भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत हैं, लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यपद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अक्षय की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पैंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है। बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई सेट्स लिए हुए हैं जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उम्दा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज़्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है, लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संगीत फिल्म देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज ए 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर and Anil Kapoor is the lead role of produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra of Yash Raj Films. It was the released on 25 April 2008 and market and direction about the Vijay Krishna Acharya. Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal AK and Jimmy Chip Saif Ali Khan is the called center in the XF2 who is also teach English. Pooja Singh Kareena Kapoor slope of the outside is the class and says and need private tutoring without any hastening, and Jimmy quickly agree has the already felt in love with her. The later finds out the Pooja and boss Lakhan with the blaze aka Bhaiya ji Anil Kapoor is the one who is the husband to their love grows, and Pooja rebels that only working for the Bhaiya ji to play her adoption so she can then the Haridwar and sister to the chest. They decide to the steal Bhaiya ji money and run away. The couple success in mission and Jimmy asks Pooja to grant the money while he goes to the call center to tell me he the living. At the call center, Jimmy has learned the Bhaiya ji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money and she meets a bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagree and Pooja puts her hands and inside his the pocket and agree. Bhaiya ji
hired the Bachchan Pandey Akshay Kumar, a gangster, to catch Jimmy. After getting caught, Jimmy and Bachchan lead awards Haridwar to find Pooja and recover Bhaiyaji money. When they reach their Pooja, see them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station, and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja comes up the water to see has been the hiding their trunk, and whole time she tells them that she has the hidden the money in the 7 different and the place across Indian. Jimmy and Pooja decide to the run away with the money. They do decide that Pooja should seduce Bachchan just like she did Jimmy, and stick to the seduce him, but finds out that they are each other and children loves, and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decides to live with it, not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Pro-production is began in the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It's released 2007 and Kapoor was signed on the play the negative role in the film. This film is continue Khan's long and standing successful celebration with Yash Raj Films. It also market the return for 3 of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with the Kareena and Anil Kapoor, where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Lemme respectively. Apart from the major star Khan's and Khan's son Abraham also made the acting debut, and where is the played the younger version of this father and character, and Shukar later enters all the actors put the supporting new look and designed by the designer A.K. Durrella. Now I talk about the reception of this film. I talk about box office. Before the release of this film, Tesson repeated the advance booking with the range of the from 25 to 35 percent tickets to the solo work weekend. The major centered on the day of the release. The film was open to 75 to 80% response, but fell short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which they did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 100 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and Multiplex, which allows the film to the screened from 3 May 2008 hours at the Multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का। बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का। बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद ज़िंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है, लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमैक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था, जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वह खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे।
लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ़ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय आचार्य ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय, जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों, कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत हैं, लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यपद हैं और ज़मीन पर चीनी लोगों से अक्षय की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पैंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है। बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से 0 फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका अभिनय और संवाद उदागई उम्दा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज़्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है, लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संगीत फिल्म देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज ए 2018 Indian action comedy film starring Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor and Anil Kapoor is the lead role of produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra of Yash Raj Films. It was the releases on 25 April 2008 and market and direction about the Vijay Krishna Acharya. Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal AK and Jimmy Chip Saif Ali Khan is called center in the access to who is also teach English. Pooja Singh Kareena Kapoor slope of the outside is the class and says and need private tutoring without any hastening, and Jimmy quickly agree has the already felt in love with her. The later finds out Pooja and boss Lakhan with the village aka Bhaiya ji Anil Kapoor is the one who is the husband to their love grows, and Pooja rebels that only working for the Bhaiya ji to play her adoption so she can then to the Haridwar and sister to the chest. They decide to the steal Bhaiya ji money and run away. The couple success in mission and Jimmy asks Pooja to grow the money while he goes to the call center to tell me the living. At the call center, Jimmy has learned the Bhaiya ji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money and she meets bank manager of the deposit and money in the bank locker.
He initially disagrees and Pooja puts her hands and inside his pocket and agree. Bhaiya ji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar, a gangster, to catch Jimmy. After getting caught, Jimmy and Bachchan lead awards Haridwar to find Pooja and recover Bhaiya ji money. When they reach there, Pooja sees them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station, and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja comes up the water to see has been hiding their trunk, and whole time she tells them that she has hidden the money in the 7 different and the place across India. Jimmy and Pooja decide to run away with the money. The dude decide that Pooja should seduce Bachchan just like she did Jimmy and straight to seduce him, but finds out that they are each other and children loves, and they both fall in love after recovering all of money. Bachchan decide to live with it, not knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Production is began in the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It released 2007 and Kapoor was signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and standing successful celebration with Yash Raj films. It also marked the return for 3 of its actors to Yash Raj films. Kumar was the producer, the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with Kareena and Anil Kapoor, where last scene is Mujhse Shaadi Karoge and Limhe respectively. Apart from the major star Khan's and Khan's son Abraham also made the acting debut, and where is played the younger version of this father and character, and Shukar later enters all the actors put the supporting new look and designed by the designer A.K. Durrella. Now I talk about the reception of this film. I talk about box office. Before the release of this film, Tesson repeated the advance booking with the range of from 25 to 35 tickets tickets to the sold work weekend. The major centered on the day of the release. The film was open to 75 to 80% response, but fell short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which they did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 100 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and Multiplex, which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the Multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. दोस्तों, अगर आप हमारा पागल दीवाना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो भाई ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इसे यूट्यूब पर अपलोड भी करता है तो इसे हटवा देते हैं, क्योंकि वे इस मूवी से अब भी वे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई ये फ्यूचर में कब अपलोड करते हैं भाई वो तो वही जानते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं, जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम करते हैं।
अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन, स्टंट, एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। इसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों, ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए, या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गुरु अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब, शिवदासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अन्ना यानी सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जॉनी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसे अधिक पैसे की पेशकश थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। येडा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एडा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और उन्हें गुरु से प्राप्त हुए थे। प्रीति टिप्पणी करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु इतने अच्छे थे। तो चलिए इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किस अभिनेता ने काहे का रोल निभाया। तो इसमें परेश रावल ने मणिलाल पटेल का रोल निभाया है, सुनील शेट्टी ने एडा अन्ना का रोल निभाया है और अक्षय कुमार ने गुरु गुलाब खत्री का रोल निभाया है। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक है। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था। और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका याग्निक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो खाई कसम, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। पांचवा गाना था मोरे सांवरिया, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। छठा गाना था या हबीबी, जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर 7वां गाना था ये
तूने क्या किया। और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रही थी। इस फिल्म का अगला भाग बनाने की योजना बनाई जा रही थी। फिरोज ने अक्षय कुमार को इसके लिए राजी कर लिया है। गैरतलब यह है कि अक्षय और फिरोज में पिछले दिनों अनबन हो गई थी, जिसके कारण अक्षय ने वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अभिनय नहीं किया। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल को अहमद खान ने निर्देशित करने वाले हैं। इसमें अक्षय के साथ विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। टी सीरीज भी फिल्म के निर्माण से जुड़ सकती है। साथ ही अक्षय इस फिल्म में काम करने बदले एक मुश्त फीस लेंगे। वे एयरलिफ्ट की तरह मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। आवारा पागल दीवाना is a 2002 Indian Hindi language action comedy film directed by Vikram Bhatt. The film's music was composed by Anu Malik and the lyrics by Sameer. It has the plot loosely inspired by the whole 9 years and features action scene and choreographed by the Susan director Dio Lam, who worked on the Matrix and the Hong Kong action films. It was the notable for Sylvester the exotic song Picturation Status Action seen by the Akshay Kumar and Paresh Rawal, popular comedian chemistry with Johnny Lever, who played a funny character called Chhota Chhatri. Directed by Vikram Bhatt, produced by Firoz Nadiadwala, written by Neeraj Arora. Music by Anu Malik, cinematography by Pravid Bhatt, and release date 21 June 2002, running time 164 minutes, country India, language Hindi. Now I talk about the plot of this film. The story is central of the legacy of the elder Indian underworld Don Baba Baldev Press Ompri, who died due to a heart attack. He leaves diamond worth 200 mm at a New York bank to be the distributed equal between his son Vikrant Rahul Dev, his daughter Preeti Jagnani, and Preeti husband Guru Gulab Khatri. Akshay Kumar to claim the diamonds. All three benefactors must to the present at the bank or it dead their death. Shortly after Dawn death, Vikram attempt to the inmate group by the assassinating in the Indian home minister in full view of television camera. Would the discuss as him group flash to the us dialogues and someone else to space protection. Now I talk about the cast of this film. Paresh Rawal as the Malayali Patel and Sunil Shetty as Eda Anna. Now I talk about the soundtrack. The music of the album has been composed by Anu Malik. All lyrics are written by Sameer. First song Avara Pagal Dimana, singing by San Sunidhi Chauhan. Length of the song 4 minutes. Second song Jise Hasna Rona, singing by Udit Narayar, Sonu Nigam, San Alka Yalkina, Sunidhi Chauhan, Sarika Kapoor, and length of this song 7 minutes 30 seconds. The third song Love Theme, its length is the 1 minute 10 seconds. Fourth song Maine To Khai Kasam, singing by Sunidhi Chauhan Abhijit. Length of this song 5 minutes 2 seconds. The fifth song More Sanvaria, singing by Sunidhi Chauhan, San Anu Malik, length of the song 6 minutes 36 seconds. The sixth song Ya Habi, singing by Adnan Semi, Sudhir Kumar, Sunidhi Chauhan, length of the song 7 minutes 19 seconds. The seventh song Ye Tune Kya Kiya, not used in the film, singing by Sonu Nigam and Anuradha Paudlal. The length of the song 7 minutes 10 seconds. Now I talk about awards. Year 2003 give the Paresh Rawal Award. Award named the film for the best performance in the comic role and G-San Award for best actor in comic role. Both awards nominated to the Paresh Rawal in 2003. In the 2004, Johnny Lever nominated the award, Screen Award for the best comedian, won this.
for this film. With Vikrant, that Preeti and Guru each get half the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrested them and take them on unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by the Chinese goons. Vikrant gets the diamonds and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. When it is all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Amol has them and saying he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Amol and gets the diamond while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double cross Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins a fight and Yeda gives the diamonds to Guru while hugging him to a war and helping him stand on Chota Chhatri's shoulders. In the end, Anmol and his love Preeti are seen going to India. Amol's ex-father-in-law give him some diamonds. दोस्तों, आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डयोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम करते हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जानी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। ऐसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों, ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में 200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गृह अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब शिवदासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। उसके पास सुप्रिया फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अंद्रा यानी सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जानी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है,
लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। एड़ा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एड़ा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और उन्हें गुरु से प्राप्त हुए थे। प्रीति टिप्पणी करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु इतने अच्छे थे। तो चलिए इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किस अभिनेता ने काहे का रोल निभाया। तो इसमें परेश रावल ने मणिलाल पटेल का रोल निभाया है, सुनील शेट्टी ने एड़ा अन्ना का रोल निभाया है और अक्षय कुमार ने गुरु गुलाब खत्री का रोल निभाया है। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक है। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका याग्निक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो खाई कसम, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। पांचवा गाना था मोरे सांवरिया, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। छठा गाना था या हबीबी, जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था ये तूने क्या किया, और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रही थी। इस फिल्म का अगला भाग बनाने की योजना बनाई जा रही थी। फिरोज ने अक्षय कुमार को इसके लिए राजी कर लिया है। गौरतलब यह है कि अक्षय और फिरोज में पिछले दिनों अनबन हो गई थी, जिसके कारण अक्षय ने वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अभिनय नहीं किया। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल को अहमद खान ने निर्देशित करने वाले हैं। इसमें अक्षय के साथ विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। टी सीरीज भी फिल्म के निर्माण से जुड़ सकती है। साथ ही अक्षय इस फिल्म में काम करने बदले एक मुश्त फीस लेंगे। वे आवारा पागल दीवाना is a 2002 Indian Hindi language action comedy film directed by Vikram Bhatt. The film's music was composed by Anu Malik and the lyrics by Sameer. It has the plot loosely inspired by the whole 9 years and features action scene and choreographed by the Susan director Dio Lam, who worked on the Matrix on the Hong Kong action films. It was the notable for Sylvester the exotic song Picturation stages action seen by the Akshay Kumar and Paresh Rawal, popular comedian chemistry with Johnny Lever, who played a funny character called Chhota Chhatri. Directed by Vikram Bhatt, produced by Firoz Nadiadwala, written by Neeraj Arora. Music by Anu Malik, cinematography by Pravid Bhatt, and released date 21 June 2002, running time 164 minutes, country India, language Hindi. Now I talk about the plot of this film. The story is central of the legacy of the elder Indian underworld on Papa Baldev Press Ompri, who died with a heart attack. He leaves diamond worth 200 mm at a New York bank to be the distributed equal between his son Vikrant Rahul Dev, his daughter Preeti Jagnani, and Preeti husband Guru Gulab Khatri, Akshay Kumar to claim the diamonds. All three benefactors must to the present at the bank or it dead. Their death
Shortly after dawn, death Bikram attempted the inmate group by the assassinating in the Indian home minister in full view of television camera, would the discuss as him group flashed to the us dialogues and someone is to space protection. Noida could cast out this press Raul as the Malayali Patel and Sunil Shetty Eda Anna. Noida could soundtrack the music of the album has been composed by Animalik. All lyrics are written by Samir. First song Awara Pagal Dimana singing by San Sunidhi Chauhan. Length of the song 4 minutes. Second song Jise Hasna Rona singing by Udit Narayar, Sonu Nigam, San Alka Yalkina, Sunidhi Chauhan, Sarika Kapoor, and length of this song 7 minutes 30 seconds. The third song Love Theme, its length is the 1 minute 10 seconds. Fourth song Maine To Khai Kasam singing by Sunidhi Chauhan Abhijit. Length of this song 5 minutes 2 seconds. The fifth song More Sanvaria singing by Sunidhi Chauhan, San Anu Malik sing length of the song 6 minutes 36 seconds. The sixth song Ya Habi singing by Adnan Semi, Sudhir Kumar, Sunidhi Chauhan. Length of the song 7 minutes 19 seconds. The seventh song Ye Tune Kya Kiya, not used in the film, singing by Sonu Nigam and Anuradha Paudlal. The length of this song दोस्तों ए दिल लगी 1994 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्माण उदय चोपड़ा द्वारा किया गया है और निर्देशन नरेश मल्होत्रा का है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार, काजोल और सैफ अली खान हैं। यह इकलौती फिल्म है जिसमें काजोल और अक्षय ने एक साथ अभिनय किया था। इसे सैफ अली खान की पहली सफल फिल्म भी माना जाता है। इसमें म्यूजिक दिया था दिलीप सेन। समीर सेन ने 154 मिनट की फिल्म है। 6 मई 1994 को रिलीज हुई थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। अगर बात करें कहानी की तो सहगल परिवार के ड्राइवर की पुत्री सपना यानी काजोल साधारण सादगी भरी खुशनुमा लड़की है, लेकिन उसके सपने उतने ही सरल नहीं हैं। वह सहगल परिवार की समृद्ध और आरामदायक जीवन शैली को देखकर खुद समृद्ध होने का सपना देखती है। विजय सहगल यानी अक्षय कुमार और विकी सहगल यानी सैफ अली खान सहगल इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी हैं। विजय जो व्यवहार से अंतर्मुखी है, पूरे सहगल परिवार के व्यवसाय को चलाता है, जबकि विकी एक गैर जिम्मेदार लड़कीबाज और एक सख्त इश्कबाज है। एक घटना उसके बीच घर्षण का कारण बनती है जब विकी सपना को चोट पहुंचाता है और उसे उसकी हैसियत की याद दिलाता है। सपना अपने छोटे शहर को छोड़कर बॉम्बे जाती है। सपनों के शहर में उसकी किस्मत उसका साथ देती है और सफलता उसे गले लगाती है। प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वह देश की सबसे बड़ी मॉडल बन जाती है। यही वह समय है जब वह विकी के सपनों की लड़की बन जाती है। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने शहर वापस जाती है। बड़ा भाई विजय सपना की सादगी से आकर्षित हो जाता है और खुद को उसके प्यार में पाता है। दूसरी तरफ विकी सपना की मोहकात से उसे पसंद करने लगता है और अपने इश्कबाज स्वभाव के विपरीत खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल लेता है जो सच्चे प्यार के अर्थ को समझता है। इन तीन व्यक्तियों के बीच इस जटिल परिस्थिति में कहानी कैसे विकसित होती है, इस चीज पर फिल्म का निर्माण होता है। एक भाई प्यार के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरा अपने भाई के जीवन के लिए अपने प्यार को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें अक्षय कुमार विजय सहगल के रूप में है, काजोल देवगन सपना के रूप में है, सैफ अली खान विक्रम विकी सहगल के रूप में है। अगर बात करें इस मूवी के गानों की तो इस मूवी के गानों के संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और इसके गीतकार हैं समीर। इसमें पहला सॉन्ग था देखो जरा देखो जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। दूसरा सॉन्ग था गोरी कलाई जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। तीसरा सॉन्ग था होडो पे बस जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। चौथा सॉन्ग था लगी लगी ये दिल की लगी जिसे गाया था लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिजीत ने। पांचवा सॉन्ग था मैं दीवाना हूँ जिसे गाया था पंकज उदास। छठा सॉन्ग था नाम क्या है जिसे गाया था लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। सातवां सॉन्ग था ओले ओले जिसे गाया था अभिजीत ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार के तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिलीप सेन समीर को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अभिजीत ओले ओले के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को दिया गया था। दोस्तों मूवी और बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।
दोस्तों मैं टसन मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम स्टोरी शुरू करें इससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा नॉलेज। दोस्तों इस मूवी के निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, इसके निर्देशक थे विजय किरगड़, इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर, में इसमें कलाकार थे अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर। इसकी रेटिंग थी 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का। बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का। बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद ज़िंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमैक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वह खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ़ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय किरगड़ ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत हैं लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यपद हैं और ज़मीन पर चीनी लोगों से अक्षय की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पैंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है। बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से 0 फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई सेट्स लिए हुए हैं जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उम्दा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज़्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संगीत फिल्म देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है।
Tassan is a 2018 Indian action comedy film starring Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, and Anil Kapoor is the lead role. Produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra. Yash Raj films. It was the releases on 25 April 2008 and market and direction about the Vijay Krishna Acharya. Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal AK and Jimmy Chip Saif Ali Khan is the called center in the executive who is the also teach English. Pooja Singh Kareena Kapoor slope of the outside is the class and says and need private tutoring without any hastening, and Jimmy quickly agree has the already felt in love with her. The later finds out Pooja and boss Lakhan with the blaze aka Bhaiyaji Anil Kapoor is the one who is the husband to their love grows, and Pooja rebels that only working for the Bhaiyaji to play her adoption so she can then to the Haridwar and sister to the chest. They decide to the steal Bhaiyaji money and run away. The couple success in mission and Jimmy asks Pooja to grant the money while he goes to the call center to tell me he the living. At the call center, Jimmy has learned the Bhaiyaji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money and she meets a bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagree and Pooja puts her hands and inside his pocket and agree. Bhaiyaji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy. After getting caught, Jimmy and Bachchan lead awards Haridwar to find Pooja and recover Bhaiyaji money. When they reach there, Pooja see them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station, and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja comes up the water to see has been the hiding their trunk, and whole time she tells them that she has the hidden the money in the 7 different and the place across Indian. Jimmy and Pooja decide to the run away with the money. They do decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are each other and children loves, and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decided to live with it. It's not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Production is the beginning the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It's released 2007 and Kapoor was the signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and standing successful celebration with the Yash Raj films. It also market the return for 3 of its the actors to Yash Raj films. Kumar was the producer the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with the Kareena and Anil Kapoor, where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Lemme respectively. Apart from the major star Khan's and Khan's son Ibrahim also made the acting debut, and where is the played the younger version of this father and character, and Shukar later enters all the actors put the supporting new look and designed by the designer A.K. Durrella. Now I talk about the inspection of this film. I talk about box office. Before the release of this film, Tassan repeated the advance booking which the range of the from 25 to 35 tickets tickets to the sold work weekend is the major centered on the day of the release. The film was open to 70
75 to 80% response but fell short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which they did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 100 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Yashraj Films and Multiplex, which allows the film to the screened from 3 May 2008 hours at the multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का। बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का। बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद ज़िंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है, लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमैक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था, जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वह खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था, लेकिन उनका निशाना हमेशा कमज़ोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ़ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय आचार्य ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय, जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत हैं, लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यपाद हैं और ज़मीन पर चीनी लोगों से अक्षय की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है, तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पैंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है। बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई सेट्स लिए हुए हैं जिन्हें करीना ने बाखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उम्दा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज़्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है, लेकिन उनका चरित्र बोर करता है।
विशाल शेखर का संगीत फिल्म देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज ए 2018 Indian action comedy film starring Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor and Anil Kapoor is the lead role of, produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra of Yash Raj Films. It was the released on 25 April 2008 and market and direction about the Vijay Krishna Acharya. Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal aka and Jimmy Chip Saif Ali Khan is called center in the exhaust to who is also teach English. Pooja Singh Kareena Kapoor slope of the outside is the class and says and need private tutoring without any hastening, and Jimmy quickly agree has the already felt in love with her. The later finds out Pooja and boss Lakhan with the blaze aka Bhaiya Ji Anil Kapoor is the one who is the husband to their love grows, and Pooja rebels that only working for the Bhaiya Ji to play her adoption, so she can then to the Haridwar and sister to the chest. They decide to the steal Bhaiya Ji money and run away. The couple success in mission and Jimmy asks Pooja to grant the money while he goes to the call center to tell me he the living. At the call center, Jimmy has learned the Bhaiya Ji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money and she meets a bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagrees and Pooja puts her hands and inside his pocket and agree. Bhaiya Ji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy. After getting caught, Jimmy and Bachchan lead awards Haridwar to find Pooja and recover Bhaiya Ji money. When they reach there, Pooja sees them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station, and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja comes up the water to see has been the hiding their trunk, and whole time she tells them that she has the hidden the money in the 7 different and the place across India. Jimmy and Pooja decide to run away with the money. The dude decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are each other and children loves, and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decide to live with it, not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Production is the beginning the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It's released 2007 and Kapoor was the signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and standing successful celebration with Yash Raj Films. It also market the return for 3 of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer, the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with the Kareena and Anil Kapoor, where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Limhe respectively. Apart from the major star Khan's and Khan's son Abraham also made the acting debut, and where is the played the younger version of this father and character, and Shukar later enters all the actors put the supporting new look and designed by the designer A.K. Durrella. Now I talk about the reception of this film. I talk about box office. Before the
release of this film doesn't repeat the advance booking, which the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sold work weekend. The major centered on the day of the release. The film was open to 75 to 80% response but fell short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which they did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 100 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Raj Films and Multiplex, which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. दोस्तों, अगर आप हमारा पागल दीवाना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो भाई ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इसे यूट्यूब पर अपलोड भी करता है तो इसे हटवा देते हैं, क्योंकि वे इस मूवी से अब भी वे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई ये फ्यूचर में कब अपलोड करते हैं भाई वो तो वही जानते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं, जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम करते हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। इसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों, ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में $200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए, या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गुरु अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब, शिवदासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अंद्रा यानी सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जॉनी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसे अधिक पैसे की पेशकश थी। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं।
विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। हेड़ा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एडा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और उन्हें गुरु से प्राप्त हुए थे। प्रीति टिप्पणी करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु इतने अच्छे थे। तो चलिए इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किस अभिनेता ने काहे का रोल निभाया। तो इसमें परेश रावल ने मणिलाल पटेल का रोल निभाया है, सुनील शेट्टी ने एडा अन्ना का रोल निभाया है और अक्षय कुमार ने गुरु गुलाब खत्री का रोल निभाया है। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक है। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका यज्ञनिक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो खाई कसम, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। पांचवा गाना था मोरे सांवरिया, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। छठा गाना था या हबीबी, जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था ये तूने क्या किया, और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रही थी। इस फिल्म का अगला भाग बनाने की योजना बनाई जा रही थी। फिरोज ने अक्षय कुमार को इसके लिए राजी कर लिया है। गैरतलब यह है कि अक्षय और फिरोज में पिछले दिनों अनबन हो गई थी, जिसके कारण अक्षय ने वेलकम के सीक्वल वेलकम बैक में अभिनय नहीं किया। आवारा पागल दीवाना के सीक्वल को अहमद खान ने निर्देशित करने वाले हैं। इसमें अक्षय के साथ विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी। टी सीरीज भी फिल्म के निर्माण से जुड़ सकती है। साथ ही अक्षय इस फिल्म में काम करने बदले एक मुश्त फीस लेंगे। वे एयरलिफ्ट की तरह मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। आवारा पागल दीवाना is a 2002 Indian Hindi language action comedy film directed by Vikram Bhatt. The film's music was composed by Anu Malik and the lyrics by Sameer. It has the plot loosely inspired by the whole 9 years and features action scene and choreographed by the Susan director Dio Lam, who worked on the Matrix and the Hong Kong action films. It was the notable for Sylvester the exotic song Picturation Status action seen by the Akshay Kumar and Pरेश रावल, popular comedian chemistry with Johnny Lever, who played a funny character called Chhota Chhatri. Directed by Vikram Bhatt, produced by Firoz Nadiadwala, written by Neeraj Arora. Music by Anu Malik, cinematography by Pravid Bhatt, and release date 21 June 2002, running time 164 minutes, country India, language Hindi.
Now I talk about the plot of this film. The story is central of the legacy of the elder Indian underworld Don Baba Baldev Press Ompri, who died with a heart attack. He leaves diamond worth 200 mm at a New York bank to be the distributed equal between his son Vikrant Rahul Dev, his daughter Preeti Jagnani, and Preeti husband Guru Gulab Khatri, Akshay Kumar to claim the diamonds. All three benefactors must to the present at the bank or it dead their death. Shortly after Dawn death, Vikram attempted to the inmate Guru by the assassinating in the Indian home minister in full view of television camera. Would the excuse as him Guru flashed to the us dialogues and someone is to space protection. Now I talk about the cast of this film. Paresh Rawal as the Malayali Patel and Sunil Shetty ji Eda Anna. Now I talk about the soundtrack. The music of the album has been composed by Anumalik. All lyrics are written by Samir. First song Awara Pagal Dimana, singing by San Sunidhi Chauhan. Length of the song 4 minutes. Second song Jise Hasna Rona, singing by Udit Narayar, Sonu Nigam, San Alka Yalkina, Sunidhi Chauhan, Sarika Kapoor, and length of this song 7 minutes 30 seconds. The third song Love Theme, its length is the 1 minute 10 seconds. Fourth song Maine To Khai Kasam, singing by Sunidhi Chauhan Abhijit. Length of this song 5 minutes 2 seconds. The fifth song More Sanvaria, singing by Sunidhi Chauhan, San Anu Malik, length of the song 6 minutes 36 seconds. The sixth song Ya Habi, singing by Adnan Semi, Sudhir Kumar, Sunidhi Chauhan, length of the song 7 minutes 19 seconds. The seventh song Ye Tune Kya Kiya, not used in the film, singing by Sonu Nigam and Anuradha Paudlal. The length of the song 7 minutes 10 seconds. Now I talk about awards. Year 2003 give the Paresh Rawal Award. Award named the film for the best performance in the comic role and G-San Award for best actor in comic role. Both awards nominated to the Paresh Rawal in 2003. In the 2004, Johnny Lever nominated the award, Screen Award for the best comedian, won this for this film. With Vikrant Dutt, Preeti and Guru each get half the diamonds. When they are outside the bank, a group of policemen arrested them and take them an unknown desert area. It is revealed that Vikrant is still alive and the first Vikrant was kidnapped by the Chinese goons. Vikrant gets the diamonds and tries to kill Guru. A fight occurs. At the end of the fight, Guru kills Vikrant. When it is all over, they ask each other to find out who has the diamonds. Amol has them and saying he will give them to Guru if he gives Preeti a divorce. Guru arrives at the location selected by Amol and gets the diamond, while giving Anmol the divorce papers. Yeda Anna double cross Guru and tries to steal the diamonds. Guru wins a fight and Yeda gives the diamonds to Guru while hugging him to a war and helping him stand on Chota Chhatri shoulders. In the end, Anmol and his love Preeti are seen going to India. Amol, ex-father-in-law, give him some diamonds. दोस्तों, आवारा पागल दीवाना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। इसमें पूरी तरह से द होल नाइट यार्ड्स से प्रेरित कहानी है और इसमें स्टंट डायरेक्टर डायोन लैम द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीन हैं जो द मैट्रिक्स और हांगकांग की एक्शन फिल्मों में काम करते हैं
अक्षय कुमार और परेश रावल की लोकप्रिय कॉमेडी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ भव्य और विदेशी गीत के चित्रांकन स्टंट एक्शन दृश्यों के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने छोटा छतरी नामक एक मजाकिया चरित्र निभाया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट। इसे प्रोड्यूस किया था फरोज नडियाडवाला ने। दोस्तों, ये मूवी है 164 मिनट की। ये इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कहानी की। दोस्तों, कहानी एक मृत भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा बलदेव प्रसाद यानी ओमपुरी की विरासत पर केंद्रित है, जो दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वह अपने बेटे विक्रांत यानी राहुल देव, उनकी बेटी प्रीति यानी प्रीति इंगियानी और प्रीति के पति गुरु गुलाब खत्री यानी अक्षय कुमार के बीच समान रूप से वितरित होने के लिए न्यूयॉर्क बैंक में 200 मिलियन के हीरे छोड़ते हैं। हीरे का दावा करने के लिए सभी 3 लाभार्थियों को बैंक में उपस्थित होना चाहिए, या यदि मत हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। डॉन की मृत्यु के कुछ समय बाद विक्रांत ने भारतीय गृह मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय गृह मंत्री ने उनके साथ छेड़खानी की थी। गुरु अभियोजन से बचने के लिए किसी और रूप में प्रसन्न अमेरिका में भाग जाता है। गुरु उस गली में जाता है और अनमोल यानी आफ्ताब, शिव, दासनी और उसका परिवार रहता है। अनमोल उसे खबर से पहचानता है। उसके पास सुप्रिया फिलवांकर उसे अपने ससुर मणिलाल परेश रावल के साथ विक्रांत को गुरु के बारे में बताने और इनाम पाने के लिए भारत जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब विक्रांत इनाम नहीं देता है और इसके बजाय अनमोल और मणिलाल को अपने किराए के आदमी येडा अंद्रा ने सुनील शेट्टी और छोटा यात्री यानी जॉनी लीवर के साथ गुरु को मारने के लिए वापस USA भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि येडा अन्ना एक डबल एजेंट था। वह पूरे समय गुरु के लिए काम कर रहा था। समूह हवाई अड्डे पर विक्रांत और प्रीति को प्राप्त करता है और होटल में ड्राइव करता है। होटल में विक्रांत का चीनी गुंडों के एक रहस्यमय समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। येडा अन्ना को एक फ़ोन कॉल करता है और पता चलता है कि अपहरण विक्रांत अली का डुप्लीकेट था और असली वाला विमान से बाद में आने वाला था। दूसरे विक्रांत को मारते हैं और ब्रुकलिन ब्रिज द्वारा उसके शरीर को कार में डाल देते हैं। विक्रांत की मौत के बाद प्रीति और गुरु को हीरे के आधे हिस्से मिले। जब वे बैंक पे बाहर होते हैं तो पुलिसकर्मियों का एक समूह उन्हें गिरफ्तार करता है और उन्हें एक अज्ञात रेगिस्तान क्षेत्र में ले जाता है। यह पता चलता है कि विक्रांत अभी भी जीवित है और पहले विक्रांत का चीनी गुंडों ने अपहरण कर लिया था। विक्रांत को हीरे मिलते हैं और वह गुरु को मारने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में गुरु ने विक्रांत को मार देता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि किसके पास हीरे हैं। अनमोल उनके पास है और कहता है कि अगर वह प्रीति को तलाक दे देगा तो वह उन्हें गुरु को देगा। गुरु अनमोल द्वारा चुने गए स्थान पर आता है और अनमोल को तलाक के कागजात देते हुए हीरे प्राप्त करता है। येडा अन्ना ने गुरु को पार किया और हीरे चुराने की कोशिश की। गुरु एक लड़ाई में जीत जाता है और एडा गुरु को हीरे देता है, जबकि उसे एक बार में लटका दिया जाता है और उसे छोटा छतरी के कंधों पर खड़ा किया जाता है। अंत में अनमोल और उसका प्यार प्रीति भारत जाते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल के ससुर उसे कुछ हीरे देते हैं और उन्हें गुरु से प्राप्त हुए थे। प्रीति टिप्पणी करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गुरु इतने अच्छे थे। तो चलिए इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किस अभिनेता ने काहे का रोल निभाया। तो इसमें परेश रावल ने मणिलाल पटेल का रोल निभाया है, सुनील शेट्टी ने एडा अन्ना का रोल निभाया है और अक्षय कुमार ने गुरु गुलाब खत्री का रोल निभाया है। तो चलिए इसके गानों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साउंड ट्रैक है। तो इसके जो साउंड ट्रैक जो आल था उसमें समीर ने जो है इसका साउंड ट्रैक दिया था और इसमें पहला गाना था आवारा पागल दीवाना, जिसके गायक थे शान सुनिधि चौहान और ये गाना था 4 मिनट का। दूसरा गाना था जिसे हंसना रोना, जैसे हंसना रोना, जिसके गायक थे उदित नारायण, सोनू निगम, शान अका जगनिक और सुधनी चौहान। यह गाना था 7 मिनट 30 सेकंड का। फिर तीसरा गाना था लव थीम में था, जो कि यह गाना था 1 मिनट 10 सेकंड का। फिर चौथा गाना था मैंने तो कहीं
मैंने तो खाई कसम जिसके गायक थे सुनिधि चौहान और अभिजीत। यह गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। 5वां गाना था मोरे सांवरिया जिसके गायक थे सुनिधि चौहान शान अनु मलिक। यह गाना 6 मिनट 36 सेकंड का था। 6ठा गाना था या हबीबी जिसके गायक थे अदनान सामी, कबीर कुमार और सुनिधि चौहान। यह गाना 7 मिनट 19 सेकंड का था। फिर 7वां गाना था ये तूने क्या किया, और ये जो है गाया था सोनू निगम ने और अनुराधा पौडवाल ने, और ये गाना था 7 मिनट 18 सेकंड का। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2003 में जो है नॉमिनेट परेश रावल को अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कॉमिक रोल, जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। तो इन 2 अवार्ड दिए गए थे परेश रावल को। फिर 2004 में जॉनी लीवर को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए दिए गए थे। नॉमिनेट भी किया गया था और दिया भी गया था। 2002 में फिरोज नडियाडवाला की फिल्म आवारा पागल दीवाना सफल रहे थे। इस फिल्म का अगला भाग बना